we have peripheral nervous system. Our central nervous system is divided into two major divisions, which are brain and spinal cord, two major parts. Brain basically receives, it stores memories, generate thoughts and emotions. And when we talk about spinal cord, it conducts signals to and from the brain and control reflex activities. This is the central nervous system. When we talk about peripheral nervous system is divided into motor and sensory neurons or units. अब यहाँ से आगे जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ से इसकी फंक्शनल जो है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है मोटर एंड सेंसरी से. देन मोटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. Somatic basically controls our voluntary movements, and the autonomic nervous system basically control involuntary responses, which is further divided into sympathetic and parasympathetic division. Sympathetic is fight or flight, and parasympathetic is rest or digest. Again, that was structural organization. Now, functional organization of the nervous system, that is unconscious efferent involuntary motor control of the internal organs to maintain homeostasis of the body. Somatic is somatic basically deals with the conscious efferents. Efferent means towards the central nervous system, and efferents are basically away from the central nervous system. So it deals with the conscious efferents, which are sensory fiber from the skin, muscle, joints, tendons, and efferents voluntary motor control. And autonomic, we all know it is divided into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic is basically protected by cranium with that surrounding the brain, and vertebral column basically surrounds the spinal cord. CNS, whole of the CNS is bathed in cerebrospinal fluid, and it is composed of gray and white matter. Now we will discuss about the gross features of the brain. A brief discussion basically. It is brain is basically semi-spherical, soft, delicate, complex organ. It is the center for control and integration. ये जो facts हैं कि what is the weight of brain, ये basically MCQ point of view से important होते हैं. Adult brain weighs near 1.5 kg, and in men it is 1600 kg, and in women it is 1450 grams. It is composed of 100 billion neurons. Anatomically, we can divide the brain into three regions. We have a forebrain, which is also a forebrain, and the part of the forebrain are basically telencephalon and diencephalon. Telencephalon and diencephalon. Then we have midbrain, which is called the mesencephalon. Then we have the hindbrain, which comprises of metencephalon and myelencephalon. इनके बारे में हम डिटेल में अभी बात करते हैं. Brain is lined by meninges. Ab meninges जो हैं, these are layers that cover and protect the brain. Now these meninges are, we have outer fibrous layer, which is dura mater. We have vascular layer, which is arachnoid matter, and we have a thin investing layer that invests the brain closely, is the pia mater. Dura mater is basically divided into dural venous sinuses, जिसके बारे में हमने लास्ट अपनी क्लास में बात की थी, and the space which is present just beneath. जी मैम आवाज आपकी बहुत ना, उनको आईटी वालों को बोलें थोड़ी सी आवाज चेक कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टॉर्शन है और कट भी रही है बीच बीच में से. जी मैं बिल्कुल, मैं भी कहती हूँ.
मुझे कॉल करना पड़ेगा उनको। चलें, आप कंटिन्यू करें, मैं कॉल कर देता हूं। हुआ है? हाँ जी प्लीज आप करते हैं, थैंक यू। We are talking about meninges, dura matter. Then we have this vascular layer, which is arachnoid matter. Then we have a pia matter. This blue one that invests closely the brain substance is basically the pia matter. The space between the dura matter and the the space between the dura mater and the subarachnoid is basically called subdural space, and the space between the arachnoid mater and the pia mater is called subarachnoid space. So these are the spaces and the meninges. Then we have brain is basically then prominently marked by surface gyri, which are called fold, and we have sulci, which are grooves. These are gyri and these are sulci or grooves. Human brain is basically composed of neurons. We have glial cells, we have blood vessels. Another important feature of the brain is basically it consists of 4 internal interconnected chambers. These chambers are called ventricles of the brain, and these are basically paired lateral ventricles. These large ones are the paired lateral ventricles, and these lateral ventricles are connected with this third ventricle, which makes the boundary of the diencephalon. Third ventricle, and it is connected through an interventricular foramen, this one. And then this third ventricle is connected with the fourth ventricle, which is present in the brain stem through aqueduct of Sylvius or a cerebral aqueduct. तो दिस इज द होल सिस्टम वेंट्रिकल्स का। अब इन वेंट्रिकल्स में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारे पास जो है क्लिनिकल कंडीशन जो आएगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस, और यू कैन प्रोनाउंस इट टू हाइड्रोकेफेलस। नाउ coming to the cerebrum or forebrain, it consists of basically telencephalon. Telencephalon is basically the cerebrum, and we have diencephalon. Diencephalon comprises of 4 parts. We have thalamus, we have hypothalamus, epithalamus, and pituitary gland. Excuse me. आवाज कह रहे थे। Thank you so much. We have thalamus, hypothalamus, epithalamus, and the pituitary gland. Now, cerebrum is basically the largest part of the brain, this one, and it is divided into 2 hemispheres by a longitudinal fissure. This longitudinal fissure divides the cerebral hemispheres into 2 parts, and these are prominently marked by gyri and sulci. Portion of the 2 hemisphere is basically connected with each other through a band of white matter, which is called the corpus callosum. This band, corpus callosum. Now, each cerebral hemisphere is further subdivided into 5 lobes. We have this red one, which is the frontal lobe. We have the parietal lobe, this blue one. Then we have this yellow one, which is occipital lobe. Then we have on the sides temporal lobes. And we also have limbic lobe, which is present here above the, we can see here above the, above this corpus callosum. Now, what are the functions of the cerebral cortex? Basically, all intellectual processes are basically controlled by this part of the brain. These are thought processes, intelligence, and it also processes basically sensory information, integrate with past experience to produce appropriate motor response. Specifically, अगर हम lobes की बात करें तो frontal lobe ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो हैं वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब बेसिकली कंट्रोल्स और डील्स विद द मेमोरी, थॉट, जजमेंट, इनहिबिशंस, बिहेवियर्स, पर्सनालिटी। तो ये सारे के सारे हमारे जो चीजें हैं दैट दीज आर कंट्रोल्ड बाय दिस फ्रंटल लोब. Then we have this parietal lobe. It is basically for the sensory integration. Our temporal lobe, this yellow one, it is for the long-term memory and auditory processing.
learning emotions. It deals with all these things. Then we have occipital lobe, this green one, which is for the visual processing or vision processing. Now coming to the diencephalon. Diencephalon is basically a major autonomic region of the brain, and it consists of vital structures such as thalamus, and this is the sagittal section. As you can see, these are thalamus, and we have hypothalamus. We have epithalamus. Epithalamus is formed by the pineal gland and the associated structure. And we have a very important gland, pituitary gland, that control whole of our body's hormonal system. Diencephalon is basically, it is surrounded by cerebral hemispheres. Thalamus, what is the function of thalamus is basically it relays stimuli received from all sensory neurons to cortex for interpretation. Yani efferent to the cortex and efferents from the cortex, which efferent from the cortex. ये सारे के सारे जो इसका function है ये perform करता है. Basically, it relays signals from the cerebral cortex to the proper area for further processing. When we talk about hypothalamus, hypothalamus basically monitors many parameters. This is hypothalamus. It monitors many parameters, which are temperature, which are blood glucose levels, various hormone levels. These are all controlled by this hypothalamus. It helps maintain homeostasis. It signals the pituitary via releasing factors and signals the lower neural centers also. Then we have this epithalamus. Epithalamus basically comprises of the pineal gland and the nearby structures, which is the habenacular nucleus, habenacular folds. ये सारे के सारे जो हैं वो basically आपके epithalamus के parts हैं. और epithalamus का function क्या होता है कि basically it is related with the secretion of melatonin by the pineal gland. Then we have pituitary gland. और pituitary gland जो है वो आपका body के almost most of the hormones जो हैं, these are secreted by this pituitary gland. Then we have midbrain. Midbrain is basically this part of the brain is called midbrain. Midbrain is a short section of brain stem. It is present between the diencephalon and the pons. It is basically a short segment that connects the hindbrain with the forebrain. Yani jo front ka portion of the brain hai, that is connected through the back by this small part, which is called the midbrain. Within the midbrain is the cerebral aqueduct that basically connects the third ventricle with the fourth ventricle of the brain. This one. This is the cavity of the third ventricle. This is the cerebral aqueduct, and this portion which is marked is basically the midbrain, and this is the hindbrain portion, and this is the fourth ventricle of the brain. Sorry. Now, there is very important structure in the midbrain, which is called corpora quadrigemina. These are basically two pairs of sensory nuclei that control the reflexes of eyes and ears. अब ये again MCQ point of view से important है कि आपको पता हो superior colliculi, we have a pair of superior colliculus and inferior colliculus. Superior because eyes are superior than ears, तो आप इससे याद रख सकते हो कि superior are for visual reflexes and inferior are for auditory reflexes. Now, we have hindbrain. Brainstem basically, जब हम बात करते हैं तो brainstem basically composed of midbrain, pons and medulla oblongata. This is the midbrain, pons and medulla oblongata. The embryonic hindbrain differentiate into two subdivisions, the metencephalon and myelencephalon. This is metencephalon is basically the pons and the cerebellum. They makes up the metencephalon, and medulla oblongata makes the myelencephalon portion.
Metencephalon or pons is basically the superior part of the hindbrain, and it conducts signals up and down in the brainstem and between the brainstem and cerebellum. और यही same function जो है वो that is performed by our medulla oblongata. Then is the cerebellum. It is located behind the brainstem. It helps monitor and regulate or coordinate the movements. Obviously, इसका function बहुत important है कि ये क्या function perform करता है. So that is regulate or coordinate the movements. It integrates the postural adjustments, maintenance of equilibrium, perception of speed, and other reflexes related to fine tuning of movements. So ये सारे के सारे जो हैं, these are the functions of the cerebellum. Now, after cerebellum, we have this spinal cord, which is an elongated cylindrical structure, and it is a rope-like bundle of nervous tissue. It begins as a continuation of the medulla oblongata at the level of foramen magnum. And in adults, the spinal cord ends at L2 vertebral level. Tip of the spinal cord, this tip is basically called conus, or इसको जो है वो conus medullaris जो है वो लिखा जाता है. Below the conus, there is a spray of spinal roots that is frequently called the cauda equina or horse tail. And it serves three principal functions. We have the function of conduction, locomotion, and reflexes. And it gives rise to 31 pairs of spinal nerve. It is divided into cervical portion, thoracic portion, lumbar portion, and sacral regions. और इसके अलावा जो है वो इसके साथ associated जो है वो spinal nerves के साथ plexuses होते हैं. We have cervical plexus, we have brachial plexus, we have lumbar plexus, we have sacral plexus. तो ये सारे के सारे जो हैं, these things are associated with the spinal cord. अभी एक इंटरेस्टिंग स्लाइड थी जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि व्हाट हैपेंड इफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड एट सर्वाइकल रीजन, एट थोरेसिक रीजन और एट लोअर लंबर और सैक्रल कॉक्सिक्स. अगर सर्वाइकल रीजन की हम बात करते हैं तो अगर जो है वो डैमेज होगा C4 या C6 के लेवल पे अगर डैमेज होता है तो इट कैन कॉज टेट्राप्लेजिया. It means कि paralysis of arms and legs जो है वो आपको इस पिक्चर में जो है वो नजर आएगा, this one. तो ये हो सकता है. Then अगर damage जो है that is at T1 and below, then it may cause paraplegia and occurs when the spinal cord is damaged below the cervical spine, and it may be injured in the thoracic spine. यानी mid back भी हो सकता है, आपका low back भी हो सकता है, lumbar region भी हो सकता है. तो उसमें जो है वो आपकी ये आपका clinical scenario बनता है. Then spinal cord end at L2, but spinal cord injuries are possible below the end of the spinal cord. This area is called the cauda equina, जिसके बारे में हमने पहले बात की. It is basically a bunch of spinal nerve resembling a horse tail. और इस condition में जो है वो आपका lower limb का area जो होता है वो paralyze हो सकता है. Then next is basically nervous tissue. नर्वस टिश्यू क्या है. अभी हमने जो है वो एक जनरल और ब्रीफ सा रिव्यू जो है वो हमने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिया कि जिसके अंदर हमने ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया. ब्रेन में भी जो है जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अलोंग विद देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. Nervous tissue basically is present in the form of gray and white matter. Gray matter is basically the cell bodies and dendroids of nerve cells, and it is devoid of myelin sheath. Again, कि dendroids जो हैं वो they are always unmyelinated, या जो है वो उनमें myelination नहीं होती. Axons जो हैं वो हमेशा myelinated होते हैं. तो when we talk about gray matter, तो gray matter जो है वो basically made up of cell bodies and dendroids of the nerve cells. अब ग्रे मैटर जो है वो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो किस फॉर्म में आपको नजर आता है. ग्रे मैटर नजर आता है हमें गैंग्लिया के फॉर्म में,
ठीक है। वी हैव न्यूक्लियाई, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको बेसल गैंग्लिया नजर आएंगे, which we can say these are basically the nuclei of the cerebral hemisphere के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देन सेरिबेलम में भी जो है वो इसी तरीके से न्यूक्लियाई होते हैं। तो these nuclei are basically the masses of gray matter. Then different laminas, cortices, body, central horn formations जितनी भी होती हैं, these are all made up of this gray matter. और अगर हम spinal cord की बात करते हैं इसमें और brain में जो है वो gray matter की जो है वो alignment में ये difference होता है कि gray matter cerebral hemisphere में जो है वो peripherally present होता है और white matter जो है वो inside होता है, यानी gray matter is outside and white matter is inside. और in case of spinal cord, in this H shape is basically the gray matter and white matter present outside, जो इसमें जो है वो हमारे tracts होते हैं जिसके बारे में भी हम बात करते हैं। White matter basically consists of nerve fibers which are axons only and which are mostly myelinated. Again, यही difference है आपका gray and white matter में कि dendroids are part of gray matter and they are unmyelinated and axons are myelinated. Now, white matter is found on the outer aspects of the spinal cord and the brainstem as bundle of nerve fibers in the form of tracts. यानी आप कोई भी ट्रैक्ट होगा तो दैट इज व्हाइट मैटर। यानी हम कोई भी डिस्कशन में अगर बात करते हैं कि फेसिकुलाई की बात करें, ब्रेकियम की बात करें, पेडंकल्स की बात करें, लेमनिस्काई की बात करें या कॉमिश्योर्स की बात करें या कोई भी कैप्सूल की बात करें, these are all made up ending tracks. These are all made up of white matter. तो की बात करेंगे कि नर्वस टिश्यू जो है, हमने कहा मेजरली कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर. नाउ नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ two types of cell basically. We have neurons and we have neuroglial cells or supporting cell of the nervous system. न्यूरॉन्स के बारे में भी हम बात करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में. उसको हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है एंड वी हैव द फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड वी हैव न्यूरोग्लायल सेल और सपोर्टिंग सेल्स व्हिच आर एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स, ependymal cells, we have Schwann cells, we have satellite cells. So all these cells are basically, they form the supporting network for our nervous system. न्यूरॉन के बारे में बात करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कि इट हैज अ लार्ज सेल बॉडी, सोमा और पेरिकैरियन, यानी ये सारे के सारे नाम जो हैं वो आपके न्यूरोनल सेल बॉडी के लिए हैं. इट कंसिस्ट ऑफ basically a large use. It contains nasal bodies. मैंने जो थोड़े past papers में MCQs देखे हैं वो basically nasal bodies को लेकर जो है वो होते हैं. Nasal bodies are basically the aggregates of रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसको, और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. और इस पे जो है वो मैंने कुछ MCQs देखे हैं जो आपकी पास्ट पेपर्स में. तो nasal bodies जो हैं, these are present, they may be present in the dendroids but they are not present in the axons. ये एक बेसिक बात है. एक्सॉन्स में जो है वो क्या है कि एक्सॉन जहां से स्टार्ट होता है वहां पे एक छोटा सा पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक, व्हिच इज अ ट्रायंगुलर पोर्शन फ्रॉम वेयर एक्सॉन इमर्ज, और यहाँ से स्टार्ट होता है. तो एक्सॉन हिलॉक में भी जो है, अगेन ये मैंने MCQ एक मेरी नजर से गुजरा था, तो एक्सॉन हिलॉक में भी जो है वो आपके नेजल सब्सटेंस या नेजल बॉडीज जो है वो नहीं होती हैं. बट आपके सोमा में, आपके पेरिकैरियन में या न्यूरोनल सेल बॉडी के अंदर जो है वो अबंडेंट अमाउंट ऑफ नेजल सब्सटेंस या नेजल बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है. एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं न्यूरॉन की. वी हैव डेंड्रॉइड्स जो कि आपके सारे मैसेजेस को जो है वो रिसीव करती हैं. डेंड्रॉइड्स में भी सिंगल, मल्टीपल, एंड दीज आर एक्सटेंशंस व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग इनपुट. जैसे कि हमने कहा कि ये सारा का सारा जो अफरेंट, ए फॉर एफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सारी रिसीव करती हैं.
Then we have axons. Axons are basically single. They are large extensions specialized for conveying output. It may be 1.5 meter in length in humans. कोई भी आपका एक्सॉन जो है जो लोअर लिम्ब की तरफ जा रहे हैं नर्व्स, उनमें एक्सॉन जो है वो उसकी इतनी लेंथ भी हो सकती है. अब ये अगेन इसकी थोड़ी सी लार्ज पिक्चर. वी हैव सेल बॉडी. इसमें जो है वो हमारे पास nasal substances हैं. We have multiple branched dendroids that receive the information, and these are unmyelinated portion of the neuron. Then we have this axon hillock, and we have this myelinated axon. Myelinated axon क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. Axon में जो है we have axon collaterals, वो भी present हो सकते हैं. And at the end of this axon we have axon terminal, और इस terminal पे जो है वो end पे we have synaptic end bulb, जो कि हमारा जब हम अभी synapse के बारे में बात करेंगे तो pre-synaptic terminals बनाते हैं information को जो है वो आगे convey करने के लिए. ठीक है. Now, function of neuron. Function of neuron is basically it is specialized to receive stimuli and to conduct electrical impulses to other parts of the system. It is arranged as an integrated communicating network with several neurons in a chain-like fashion involved in sending impulses from one part of the system to another. जो basic function है neuron का. Now, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन की तरफ. क्लासिफिकेशन में वी हैव स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड वी हैव फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि जी हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो किस टाइप में पाए जाते हैं या किस शक्ल में पाए जाते हैं. तो वी हैव मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, वी हैव बाइपोलर न्यूरॉन्स, एंड वी हैव यूनिपोलर, और वी कैन से सूडो यानी फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन्स के वो इस तरह से जो है वो आपको नजर आते हैं, बट दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो दीज आर द most abundant neurons in the body, and this is the major neuron type in the central nervous system. These are multipolar neurons. और इनमें देखें तो हम मल्टीपोलर जो है वो उससे हमें नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो है वो मल्टीपल किसी एक पोल पे जो है वो मल्टीपल डेंड्रॉइड्स होंगी, या वो क्योंकि ये ऑब्वियसली डेंड्रॉइड हो सकती हैं क्योंकि एक्सॉन इज ऑलवेज अ सिंगल एक्सॉन होती है. तो दीज आर मल्टीपल डेंड्रॉइड्स. ये हमारे पास अगर सेल की एग्जांपल देखें तो वी हैव पर्कंजी सेल्स ऑफ द सेरिबेलम के जिनके अंदर जो है वो डेंड्रॉइड्स इस तरह से होती हैं. दीज आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. देन वी हैव पिरामिडल सेल्स जो कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, तो वो भी सेल्स जो हैं दीज आर एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. इसके अलावा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न में जितने न्यूरॉन्स होते हैं दीज आर ऑल मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. Then we have bipolar neurons. Bipolar neurons are basically they are rare and they are found in some special sensory organs. Any bipolar neurons are always associated with sensory organs. We have olfactory cells. These are also bipolar neurons, yani it's the cells with two poles. We have retinal cells जिसमें ganglionic cells होते हैं जो कि हमारे optic nerve बनाते हैं. तो these are basically all bipolar neurons. Unipolar की बात करें तो unipolar neurons basically they found in the peripheral nervous system. यानी multipolar जो है they are abundant in central nervous system. Bipolar को हमने जो है वो sensory के साथ जो है वो associate कर दिया. And then we have unipolar or pseudo unipolar neurons. They are found in the peripheral nervous system. They are common in the dorsal root ganglia. क्या होता है कि इसके बारे में हम बात करेंगे. That is dorsal root ganglia of the, उनके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं they are basically unipolar or we can say pseudo unipolar. और इनका जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि these इनमें आपके जो
प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, वो इस तरह से होता है कि दिस इज टी शेप, बेसिकली सेल बॉडी है, वहां से एक सिंगल प्रोसेस निकलता है, एंड दिस प्रोसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द पेरिफेरल प्रोसेस, जो कि जिसको हम डेंड्राइट कह सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, रिसीविंग एंड होगा, एंड वी हैव अ सेंट्रल प्रोसेस जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, और ये प्रोसेस जो है इसको हम एक्सॉन कह सकते हैं, और ये जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो पेरिफेरल प्रोसेस से आई है उसको जो है वो कन्वे करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन टू द ब्रेन। तो इसमें याद रखने के लिए सिर्फ ये है कि आपने ये याद रखना है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली क्या होती है। देन वी हैव दिस फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन। फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वी हैव सेंसरी न्यूरॉन्स एंड वी हैव मोटर न्यूरॉन्स, और इन बिटवीन द टू, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए वी हैव इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन, अगर ये स्पाइनल नर्व है तो दिस इज द बेसिकली द पोस्टीरियर रूट एंड दिस इज द एंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर रूट में जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है, और इस पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास यूनिपोलर और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ सेल बॉडी, और इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, वी हैव अ सेंट्रल प्रोसेस एंड वी हैव अ पेरिफेरल प्रोसेस। तो पेरिफेरल प्रोसेस में जो है वो क्या होता है कि जितनी सेंसेशंस होती हैं, जैसे हमारे ये फिंगर टिप्स हैं, यहाँ से जितनी भी सेंसेशंस जाती हैं वो सारी की सारी, दैट इज पेन, टच, टेम्परेचर, ये सारी सेंसेशंस जो हैं वो यहाँ से जाती हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में उसने पोस्टीरियर रूट में जाना है इस इंफॉर्मेशन ने। तो ये हमारे पेरिफेरल प्रोसेस के जरिए से एफरेंट यानी टुवर्ड्स, अफरेंट यानी ए टुवर्ड्स के लिए है, ई अवे के लिए है। तो इस पेरिफेरल प्रोसेस के जरिए से जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में आती है, और यहाँ से जो है वो फिर फर्दर जो है वो आगे ये इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे होती है। देन वी हैव एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो दीज आर एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी और मोटर के दरमियान जो है वो कनेक्शन जो है वो है, और इन दोनों को कनेक्ट करने का जो है वो रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, as the name suggests, motor neurons जो है वो basically is for the motor activity, and this is the efferent transmission। तो इनकी neuronal cell bodies जो कि multipolar neurons हैं, जो हमने सेंसरी की बात की तो सेंसरी आर बेसिकली सूडो यूनिपोलर, और मोटर की बात करें तो मोटर आर बेसिकली ये मोटर न्यूरॉन, दीज आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, एंड दीज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं उनकी इफरेंट ट्रांसमिशन होती है टू द इफेक्टर्स और मसल्स या ग्लैंड्स जो भी होंगे उन पे। तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज के जो है वो न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ के न्यूरोग्लायल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के। अब ये सपोर्टिंग सेल्स जो हैं वो बेसिकली these are astrocytes, we have oligodendrocytes, we have microglial cells, we have ependymal cells, we have Schwann cells and we have satellite cells। अब ये सेल कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम एक ब्रीफ सा जो है वो इनके बारे में जो है वो लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो है वो आपसे इनके फंक्शन के बारे में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। First of all, we have astrocytes. Astrocytes जो हैं, these are the largest, most numerous. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो these cells are basically astrocytes. These large cells, ये जो आपको नजर आ रहे हैं multiple processes के साथ, तो these are astrocytes. अब astrocytes जो हैं basically they have extensions. इनके एक्सटेंशंस होते हैं और एंड ऑफ एक्सटेंशंस के ऊपर जो है वो पेरीवैस्कुलर फीट्स होते हैं, एंड दीज पेरीवैस्कुलर फीट दे कॉन्टैक्ट
ब्लड कैपिलरीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पिक्चर में, मेरे कर्सर को अगर फॉलो करते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दिस इज अ ब्लड कैपिलरी और दिस इज एन एस्ट्रोसाइट, और एस्ट्रोसाइट के प्रोसेसेस ने कंप्लीटली कवर किया हुआ है इन ब्लड कैपिलरीज को। तो जैसे ही आप एक ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम सुने तो आपके जहन में सबसे पहले जो है वो जो सेल्स आने चाहिए कि दीज आर एस्ट्रोसाइट्स, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय the foot processes या perivascular feet of the astrocytes and the capillary wall। तो ये दोनों चीजें मिलके ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं, जो कि एस्ट्रोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड जो है वो इंपॉर्टेंट बात है। अब इनकी जो है वो दो टाइप्स होती हैं, वी हैव प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स एंड वी हैव फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर एंड फाइब्रस आर इन द व्हाइट मैटर। दोनों में जो है वो फर्क क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो हैं बेसिकली अगर आप इनकी सेल बॉडी देखें और आप फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स की सेल बॉडी देखें तो फाइब्रस को जो है वो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि प्रोटोप्लाज्मिक इसकी सेल बॉडी जो है वो जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडी होती है मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ, कुछ उस तरह नजर आती है। और फाइब्रस जो है वो नर्व फाइबर से एसोसिएट करके तो ये व्हाइट मैटर में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस बेसिकली जो है वो हमें नजर आ रहा है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। बट फंक्शनली क्या करते हैं ये एस्ट्रोसाइट्स? सबसे पहली चीज ये कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है, एंड दे सपोर्ट एंड ब्रेस द न्यूरॉन्स और दे मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर, दे एंकर न्यूरॉन टू देयर न्यूट्रिएंट सप्लाईज। ऑब्वियसली सारी न्यूट्रिएंट जो है वो आ रही है आपकी कैपिलरीज के जरिए से, तो उस न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है सारे के सारे सेल्स में ये बेसिकली आपकी आती है थ्रू दीज एस्ट्रोसाइट्स। They basically guide migration of the young neurons, they control the chemical environment, they perform the function of formation of scar tissue। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और दूसरा जो है वो ये स्कार टिश्यू बनाते हैं इन द डैमेज्ड एरियाज ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी ये दो बातें जो हैं वो एस्ट्रोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Then we have the microglial cells। अब होता ये है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो जिनको हम न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं, तो उनका ओरिजिन जो है वो बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल के साथ एसोसिएटेड है। बट माइक्रोग्लायल सेल्स जो हैं क्योंकि ये मैक्रोफेज सिस्टम के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं, तो ये बेसिकली इनका ओरिजिन जो है वो बोन मैरो से होता है। तो माइक्रोग्लायल सेल्स basically these are smallest ovoid cells with spiny processes जैसे आपको नजर आ रहा है, and they have a rod shaped nucleus और no intermediate filaments, जो इसके अंदर जो है वो filaments present नहीं होती। Functionally basically they are phagocytic cells। जैसे मैंने कहा कि मैक्रोफेज के साथ एसोसिएटेड जो है वो आपका इनका फंक्शन होता है, तो they migrate through the CNS and remove foreign and degenerated material। यानी आपके नर्वस सिस्टम में जो degenerated material है उसको रिमूव करने के लिए जो सेल्स हैं these are microglial cells। Microglial cells के बाद another important type of cell which is oligodendrocytes। Oligo means scanty and dendron is the tree, यानी इसके नाम से पता चलता है कि वो सेल होंगे कि जिनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं हुई भी, बट दे आर ब्रांच्ड, लेकिन जिस तरीके से बाकी हमने देखा सेल्स को उस तरीके से ब्रांचिंग नहीं है। दे रैप सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर्स। तो जब हम माइलिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन जो है वो करते हैं हमारे शॉन सेल्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने एक्सॉन्स होते हैं उनकी माइलिनेशन जो है दैट इज परफॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इनको लेके। there is no perivascular feet बना रहे हैं और उनमें ढेर सारे perivascular feet हैं, तो ऐसा oligodendrocytes के साथ नहीं है। And there are no intermediate filaments। Now there are two types of dendrocytes। मैम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है।
जी बेटे। मैम आपकी तरफ बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। मैम आपका नेटवर्क का इशू, वो आपका डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। We cannot see you and we cannot hear you. जी बेटे, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। आ रही है? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम स्क्रीन नहीं शेयर। यानी आपको प्रेजेंटेशन नहीं नजर आ रही स्क्रीन? यस मैम नहीं मैम है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन नहीं नजर आ रही। अच्छा जी, एक मिनट में बुलाती हूँ किसी को यहाँ पे। अब बेटे यस मैम। ठीक है, करूँ स्टार्ट? यस मैम जी मैम कंटिन्यू स्टार्ट करें। ठीक है। सॉरी, आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है इनका। हम बात कर रहे थे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट बात थी कि ये बेसिकली माइलिनेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेलुलर एक्सॉन्स को। ठीक है। और इनकी टाइप्स की बात कर रहे थे तो वी हैव इंटरफेसिकुलर और पेरी न्यूरोनल, यानी अराउंड द न्यूरॉन। तो उससे ये होता है कि न्यूरोनल सेल बॉडीज जो होती हैं उनको सराउंड करता हुआ कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पेरी न्यूरोनल टाइप ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर, और व्हाइट मैटर के अंदर इंटरफेसिकुलर होते हैं, एंड दे प्रोड्यूस माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ अब आते हैं शॉन सेल या न्यूरोलेमोसाइट्स। अगेन एमसीक्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे एमसीक्यूज में एनाटॉमिकल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें जो है वो अगर ये बात करें तो उसमें हर चीज के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको एमसीक्यू में न्यूरोलेमोसाइट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसके नाम को लेके और इन चीजों को लेके पता होना चाहिए कि किन सेल्स की बात हो रही है। तो शॉन सेल्स को हम न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं। दे एनवेलप द नर्व फाइबर्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दे वाइंड रिपीटेडली अराउंड द नर्व फाइबर। कैसे? अभी हम माइलिनेशन देखते हैं तो उसमें जो है हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से माइलिनेट करते हैं। दे प्रोड्यूस अ माइलिन शीथ व्हिच इज सिमिलर टू द वंस प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे असिस्ट इन द रीजनरेशन ऑफ द डैमेज फाइबर्स। शॉन सेल की मल्टीपल टाइप्स होती हैं और वो जो है वो कुछ होती हैं वो रीजनरेशन ऑफ डैमेज फाइबर में जो है वो हेल्प करती हैं। देन वी हैव सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल बेसिकली न्यूरोनल सेल बॉडीज जो होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं गैंग्लिया के साथ, उन सबको जो है वो सराउंड करते हैं। तो अगेन इनका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, यही फंक्शन जो है वो इनका होता है। उसके बाद है लास्ट सेल्स जिनको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स बेसिकली दीज आर क्यूबॉइडल टू लो कलमनर शेप्ड सेल्स। इनमें सीलिया या माइक्रोविलाई होते हैं, बट देयर इज नो बेसल लैमिना beneath these cells, and they line the central cavities of brain and spinal column। यानी आपके जितने भी वेंट्रिकल्स हैं उन सबको जो है जो लाइनिंग होगी वो सारी की सारी जो है वो होगी एपेंडाइमल सेल्स के साथ। और ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच इज अ क्लियर फ्लूइड दैट बैथ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो वी हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और ये हमने लास्ट अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था। वी हैव ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, और आगे कोई बताएगा मुझे?
Nerves सारी की सारी cranial nerves in a sequence. Olfactory, optic, oculomotor, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. Thank you. And we have spinal nerves, which are 31 pairs of spinal nerves. We have nerve plexus की बात की थी हमने, तो nerve plexus में जो है we have cervical plexus, we have cervical plexus जो C1 से C4 तक है, we have brachial plexus C5 to T1, we have lumbosacral plexus T12 to S5, और ये सारे के सारे plexus जो हैं these are associated with our limbs के साथ mostly जो है वो associated होते हैं उनकी movements के लिए. And गैंग्लिया की बात करें कि जो दूसरा पार्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, तो गैंग्लिया में वी हैव क्रेनियोस्पाइनल गैंग्लिया, जिसको हम जिसमें जो है वो हमारे सेंसरी गैंग्लिया जिन्हें कहते हैं, कि उसके अंदर जो है वो क्रेनियल नर्व्स, फिफ्थ विच इज ट्राइजेमिनल, सेवेंथ विच इज फेशियल, एट्थ विच इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर और नाइन्थ ग्लॉसोफरेंजियल. तो उनके जो गैंग्लिया होते हैं वो बेसिकली दे आर सेंसरी. और उसके अलावा जो है वो स्पाइनल गैंग्लिया या डॉर्सल रूट गैंग्लिया बेसिकली जो हमने स्पाइनल नर्व के साथ एसोसिएटेड किया, और जिसके अंदर हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन या सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. देन वी हैव ऑटोनोमिक गैंग्लिया होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, सिंपैथेटिक चेन के साथ, कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं. पेरिफेरल नर्व की बात करें तो बेसिकली नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स. अब नर्व फाइबर जो है वो अगेन बाय डेफिनेशन सिर्फ एक्सॉन एंड देयर सपोर्टिंग शॉन सेल्स होते हैं. We have myelinated nerve fibers and we have unmyelinated. दो तरह से जो है वो नर्व फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं. माइलिनेशन कैसे होती है? हमने कहा कि जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम शॉन सेल्स करते हैं. तो यहाँ पे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो शॉन सेल्स किस तरीके से जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं कि न्यूरोलेमोसाइट्स जो कि शॉन सेल्स हैं, दे स्टार्ट टू रैप अराउंड अ पोर्शन ऑफ द एक्सॉन, and neurolemocytes, cytoplasm and plasma membrane begin to form consecutive layers around एक्सॉन. कुछ इस तरीके से जो है ये इनकी लेयर्स बनती जाती हैं, फॉर्म द माइलिन शीथ जो आपको नजर आ रहा है. Eventually the neurolemocyte, cytoplasm and nucleus are pushed towards the periphery of the cell as the myelin sheath is formed. तो इस तरीके से जो है वो इसकी माइलिनेशन होती है हमारे एक्सॉन्स की. ये अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, यहाँ आपको नजर आएगा कि शॉन सेल्स के दरमियान जो गैप होता है ऑफ रेनवियर, ठीक है. और उसके अलावा जो है वो क्या होता है कि अब ये जैसे रैपिंग हो रही है शॉन सेल की अराउंड, तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म जो है वो कहीं कहीं जो है वो दरमियान में इन लेयर्स के अंदर जो है वो उसकी इंपैक्शन हो जाती है, और वो कुछ इस तरह से जो है वो अपीयर होता है, और इनको कहते हैं हम श्मिट-लैंटमैन क्लेफ्ट. तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्म है जो एंट्रैप हो गया है ड्यूरिंग माइलिनेशन, जो वाइंडिंग हो रही है उसके दरमियान में, मल्टीपल लेयर्स के दरमियान में. तो इनको हम कहते हैं श्मिट-लैंटमैन क्लेफ्ट. और दो शॉन सेल्स के दरमियान जो स्पेस है जहां माइलिनेशन नहीं हुई हुई, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. अब व्हाट हैपन टू अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जिनको हम कहते हैं, अब ऐसा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने जाना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सॉन जो है वो माइलिनेशन के बगैर हो. तो वो किस तरीके से होती है कि उसमें टिपिकल माइलिनेशन नहीं होती, बट न्यूरोलेमोसाइट स्टार्ट टू एनवेलप मल्टीपल एक्सॉन्स, यानी मल्टीपल बंडल्स को या तो वो कर लेगा, या फिर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन जो होती हैं दे आर एनवेलप्ड बाय द न्यूरोलेमोसाइट्स बट देयर आर नो माइलिन शीथ रैप्स, यानी या इस तरीके से जो है वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाएंगी या एनवेलप कर लेंगी, या फिर जो है वो पूरे पूरे एक्सॉन बंडल्स जो हैं वो जो है वो एनवेलप करेंगे, शॉन सेल उनको एनवेलप कर लेगा. अब क्या है स्ट्रक्चर नर्व का, क्या होता है? नर्व फाइबर्स बेसिकली दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू which are organized into distinct components. अब ये जो connective tissue layers होती हैं, we have अगर हम देखें ये पूरी की पूरी एक नर्व को
वी हैव पैरान्यूरियम, यानी अबव द नर्व जो है वो जो भी एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है, ये अगेन ये शीथ जो है वो उसके इनर साइड पे जो है वो जो हमारे पूरे नर्व को कर रही है, दैट इज कॉल्ड एपिन्यूरियम, अबव द न्यूरियम. पैरा मीन्स सराउंड, एपी मीन्स अबव, और फिर उसके बाद जो आपको ये फेसिकल्स या बंडल्स ऑफ एक्सॉन नजर आ रहे हैं, इनको जो है वो करेंगी पेरीन्यूरियम. ठीक है, पेरीन्यूरियम और सिंगल एक्सॉन को जो है वो एनवेलप करेगी एंडोन्यूरियम. तो वी हैव 4 लेयर्स, पैरा सराउंड, देन वी हैव एपी अबव, then we have peri जो फेसिकल को कर रही है, and we have a single nerve fiber को जो करेगी, that is called endoneurium. और ये सारी की सारी जो है ये कनेक्टिव टिश्यू शीथ है. और कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है या कैप्सूल होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो है वो वेसल्स को और यानी बेसिकली न्यूट्रिशन सप्लाई को या बहुत सारी जगहों पे जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज को, इन सब चीजों को जो है वो ब्लड वेसल्स को जो है वो कोर ऑफ द ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए होता है. तो इसमें जो है वो इस केस में भी ये जितनी भी नर्व की लेयर्स हैं, ये सारी की सारी यही फंक्शन परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं. अब क्या होता है कि यहाँ पे एक नर्व बैरियर बनता है. हमने ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की थी. तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय, जल्दी से बताएं कौन बना रहा है? एस्ट्रोसाइट्स एंड ब्लड कैपिलरीज दोनों मिलके और वो ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लड नर्व बैरियर बनता है. ठीक है, अब ब्लड नर्व बैरियर जो है वो कैसे बनता है कि बेसिकली जो एक फेसिकल को, सॉरी मेरा कर्सर थोड़ा सा, हाँ, जो एक बंडल या फेसिकल को कवर कर रही है कनेक्टिव टिश्यू शीथ, उसे हमने कहा है कि दिस इज कॉल्ड पेरीन्यूरियम. अब इस पेरीन्यूरियम में क्या होता है कि मल्टीपल सेलुलर लेयर्स होती हैं. ठीक है, पेरीन्यूरियल सेल्स कहते हैं उनको. वो सेल्स इन ब्लड वेसल्स के साथ जो कि सराउंड कर रही हैं इनसाइड एंड आउटसाइड एक बैरियर बनाते हैं विच इज कॉल्ड ब्लड नर्व बैरियर. ठीक है, तो blood brain barrier is formed by perivascular feet of the astrocytes, ठीक है, and blood capillaries of the brain. और blood nerve barrier is formed by the perineurial cells and the blood capillaries within a nerve fiber. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसके लिहाज से. मैम प्लीज दोबारा बता दें. अच्छा, मैंने बेटे ये कहा कि ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि उसके बारे में पूछा जाता है इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा जो है वो फोकस कर रही हूँ. तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय द पेरीवास्कुलर फीट ऑफ एस्ट्रोसाइट्स एंड द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, और मैंने कहा कि ब्लड नर्व बैरियर इज फॉर्म्ड बाय द पेरीन्यूरियल ग्लायल सेल्स. यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल होंगे, यानी उस बंडल या फेसिकल को जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवर कर रही थी उसको हमने कहा पेरीन्यूरियम. और पेरीन्यूरियम के अंदर जो है वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जो कि उसको सराउंड कर रही होती हैं बंडल को या फेसिकल को. और मैंने जो दूसरी चीज आपको बताई वो मैंने ये बताई कि जहां भी कनेक्टिव टिश्यू शीथ होगी वो बेसिकली ब्लड वेसल्स को आपके न्यूट्रिशनल सप्लाई को अंदर लेके जाने के लिए है. तो यहाँ पे भी जो है वो एक बैरियर क्रिएट होता है इन पेरीन्यूरियल सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में, हर नर्व फेसिकल के बाहर. ठीक है, तो इसको हम ब्लड नर्व बैरियर कहते हैं. ठीक, ये एक बात थी जो मेरा ख्याल था कि यहाँ पे बतानी जरूरी है. थैंक यू मैम. थैंक यू बेटा. अगेन ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें वही बात है, दिस इज एपिन्यूरियम. अब ये पेरीन्यूरियम की जो बात मैं कर रही थी, आपको ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. अब ये जो है वो हमारा ब्लड नर्व बैरियर बनाती हैं. अब आ जाते हैं गैंग्लिया की तरफ. गैंग्लिया क्या है कि कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और अगर ये कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडी इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमने ग्रे मैटर किया था. हमने कहा था कि ग्रे मैटर के जो है वो हमारे पास जो बंडल्स हैं न्यूक्लियाई कहेंगे. ठीक है, तो
हमने पहले भी बात की थी कि ग्रे मैटर जो है वो विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो बेसल गैंग्लिया या न्यूक्लियाई होते हैं वो भी तो बेसिकली एग्रीगेट ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज है ना, ठीक है, तो उनको हम न्यूक्लियाई कहेंगे, बट अ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। अब ये गैंग्लिया जो होते हैं ये बेसिकली कैप्सुलेटेड होते हैं, लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होते हैं वहां पे कैप्सूल्स नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ एग्रीगेट्स होते हैं जो अपनी स्पेसिफिक शेप बना लेते हैं, उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। Microscopically and functionally, they can be grouped into two groups. We have sensory ganglion, which are the posterior root ganglion, and we have autonomic ganglion. सेंसरी या पोस्टीरियर रूट, अगेन हमने आगे भी इसको डिस्कस किया है कि हमारी पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वहां पे हमारे पास एक गैंग्लिया होता है जिसे हम पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया कहते हैं। वो हमारी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को डील करता है और उसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो यूनिपोलर या सूडो यूनिपोलर होते हैं कि जिसके अंदर न्यूरोनल सेल बॉडी होती है और टी शेप 2 प्रोसेसेस होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल प्रोसेस। तो और उसमें जो है गैंग्लिया की जब हम बात करते हैं तो यूनिपोलर सेल बॉडीज होती हैं, दे एनवेलप्ड बाय सैटेलाइट सेल जो उसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेंसरी गैंग्लिया आर सपोर्टेड बाय अ डिस्टेंट कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। इनका एक पूरा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है। ये cranial ganglia associated with cranial nerves, जिनके बारे में हमने बात की थी 5th, 7th, 8th and 9th, and spinal ganglia are associated with spinal nerves. अगेन ये उसका जो है वो और उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया में होती है, और सैटेलाइट सेल्स जो कि ग्लायल सेल्स में हमने पढ़े कि वो सराउंड करते हैं न्यूरोनल सेल बॉडीज इन द गैंग्लिया या बाकी जगहों पे। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया आते हैं, दे आर बेसिकली स्मॉल बल्बस डायलिटेशंस ऑटोनॉमिक नर्व्स में होती हैं, एंड दे आर लोकेटेड विद सर्टेन विदिन सर्टेन ऑर्गन्स, स्पेशली इन द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जिसकी हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होते हैं जो कि वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और इनको जो है वो इंट्राम्यूरल गैंग्लियाज भी कहते हैं। कैप्सूल जो है वो इनका लेस वेल डिफाइंड होता है एज कंपेयर टू सेंसरी गैंग्लिया, और दे यूजुअली हैव मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अगेन सिर्फ मेरा ख्याल है कि इतना सा डिफरेंस याद रखें, या ये 1 लाइन अगर आपको याद रह जाए कि सेंसरी गैंग्लिया में यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात जो है वो इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद रह जाए। अगेन ये उसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है किसी ये गैंग्लिया का। ये है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपोलर न्यूरोनल सेल बॉडीज नजर आ रही हैं। तो क्या होता है कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं वो फ्रॉम ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आती हैं। यहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं उनके डेंड्राइट्स आपको नजर आ रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं दीज आर अनमाइलिनेटेड। अगेन ये स्लाइड भी मैंने सिर्फ इसलिए लगाई थी कि आपको पता चल जाए कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे आर माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखना, जो इस में से याद रखने की बात है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। अभी तक हमने जो है वो जो डिस्कस किया है वो बेसिकली जनरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंक्शनल के सोमैटिक होता है, ऑटोनॉमिक होता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उसके साथ एसोसिएटेड जो छोटे मोटे फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया। फिर हमने नर्वस टिश्यू को डिस्कस किया, नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन से सेल्स नर्वस टिश्यू बनाते हैं उसके बारे में बात की, माइलिनेशन कैसे होती है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे। अब हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू, और ये हमारा इनवॉलेंट्री सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड थोरैको-लंबर, और इसमें जो है वो क्या किस तरीके से होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक चेन होती है जो कि बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होती है। आई थिंक ये तो सबको पता होगा फ्रॉम T1 टू L2।
सॉरी, तो वहां तक जो है वो सिंपैथेटिक चेन होती है, जो गैंग्लियोनिक चेन होती है, बीड लाइक अपीयरेंस होती है, और दोनों साइड पे जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो है वो प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न है, ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं, जो ग्रे कॉलम, जो ग्रे एच शेप स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड में उसको। ठीक है, अब एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इसको कंफ्यूज नहीं करना रूट्स के साथ। एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट होती है, या इसको जो है वो हम वेंट्रल या डॉर्सल रूट कहते हैं। ठीक है, और इनको जो है वो आपने हॉर्न्स के साथ नहीं, हॉर्न्स आर एसोसिएटेड विद ग्रे मैटर। तो दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज एंटीरियर हॉर्न, और इन बिटवीन दीज हमारे पास एक लेटरल हॉर्न होता है। लेटरल हॉर्न इज एसोसिएटेड विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं, बेसिकली वो आते हैं हमारे इस लेटरल हॉर्न से, और दीज आर माइलिनेटेड फाइबर्स, जैसे हमने गैंग्लियन में मैंने आपको भी बताया था। ये आते हैं हमारे पास थ्रू, दे अराइज फ्रॉम द लेटरल हॉर्न, सॉरी मेरा कर्सर थोड़ा सा, lateral horn of the spinal cord, and they leave the spinal cord with the ventral root of the spinal nerve. ठीक है, ventral root से आएंगे and they अब फिर उसके बाद साइनेप्स कहाँ करेंगे आके, सेल बॉडीज लोकेटेड इन द ग्रे मैटर, और ये कहाँ, सिंपैथेटिक चेन में। ठीक है, यहां तक जो है ये सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं दीज आर ऑल माइलिनेटेड फाइबर्स। अब यहाँ से जो है वो सिंपैथेटिक चेन से आगे जो फाइबर्स जाएंगे वो होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं इनका फेट क्या हो सकता है कि ये जो है वो वापस जो है वो जाके थ्रू स्पाइनल नर्व जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जगहों पे फिर दूसरा फेट क्या हो सकता है कि ये डायरेक्टली चले जाएं जिन ऑर्गन्स में इन्होंने जाना है, या ये थ्रू कोलेटरल गैंग्लियंस जो है ये जाएंगे टू लिवर, स्प्लीन, एड्रेनल ग्लैंड, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो ये फेट होती है जो तीन हम करते हैं कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो ये कर सकते हैं, बट दे अराइज फ्रॉम द, जो इम्पोर्टेंट बात जनरल एनाटॉमी के रेफरेंस से मैं आपको बताऊं वो याद रखने की है कि सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर अराइज फ्रॉम लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और उसके बाद जो है वो माइलिनेटेड होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं दे आर अनमाइलिनेटेड। बस ये इतनी सी बात अगर आपके जहन में रह जाए तो आई थिंक ये इनफ है। हाँ, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पास टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। अगेन वही इसको इंटरप्रेट किया है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। वी हैव सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लेटरल हॉर्न से T1 to L2 ये जाएंगे, और ये जाएंगे गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक चेन में जाएंगे। वी हैव कोलेटरल गैंग्लिया, या फिर जो है वो इन केस ऑफ एड्रिनल मेडुला वो डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अब ये क्या करेंगे कि अगर चेन के जरिए से जा रहे हैं तो विजुअल इफेक्टर्स थोरेसिक कैविटी, हेड, बॉडी वॉल, लिम्स हर एक में चले जाएंगे। कोलेटरल गैंग्लिया के जरिए से विजुअल इफेक्टर्स इन एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। ठीक है, यानी ये टारगेट ऑर्गन्स जो हैं वो ये होंगे, और अगर डायरेक्टली एड्रिनल मेडुला के साथ एसोसिएटेड हैं तो ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स थ्रू आउट द बॉडी जो है वो जा सकते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करेंगे सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेगमेंटल लेवल सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको पता हो कि ये लेवल पे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा। T1 T2 डील्स विद हेड एंड नेक रीजन, T3 T4 डील्स विद थोरेसिक विसरस, T5 to T9 अपर लिम। अब ये अगेन ये वही चीज है कि आपको याद रखनी है बेसिकली आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर इन सेगमेंटल लेवल को लेके आपसे कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता हो कि हम ये सारा इन एरियाज, इसका जो है वो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो उस लिहाज से ये आपके लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है। T6 to T12 इज अपर एब्डोमिनल विसरस, L1 L2 लोअर एब्डोमिनल विसरस, और T1 to T12 जो है वो हमारे पास पूरा कंप्लीट जो है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वेसल्स को जो है वो इनोवेट करता है।
सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। हम शुरू से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो करते क्या हैं। तो एक ब्रीफ सा जो है वो इसके बारे में देख लेते हैं। वी हैव प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये हमारा गैंग्लियन हो गया। देन वी हैव पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो अगर आई पे इफेक्ट कर रहे हैं तो दे डायलेट द प्यूपिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के बारे में जो है वो पता हो। लंग के बारे में बात करें तो दे डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। हार्ट के बारे में बात करें तो दे इंक्रीज द हार्ट रेट। ब्लड वेसल्स की बात करें तो बेसिकली दे कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। जीआईटी को रिलैक्स करते हैं, ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं और यूट्रस को रिलैक्स करते हैं। तो ये बेसिकली सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज हैं जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो सारा का सारा परफॉर्म करता है। तो अगेन जैसे पिछली स्लाइड मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के बारे में पता हो। अगेन इन दोनों चीजों को लेके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और आपको जो है वो अगर उन लेवल्स का पता है और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्गन्स पे इफेक्ट्स का पता है नर्वस सिस्टम के तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। अब ये बिल्कुल दो एक्सट्रीमिटीज हैं और इन बिटवीन दीज एक्सट्रीमिटीज लाइज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हैज अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन बॉडी प्रोसेसेस एक्सेप्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसको जो ट्रिगर करता है। एंड द फंक्शन ऑफ द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम इन जनरल इफेक्ट इज दैट ऑफ अ पीस मेकर, ठीक है। यानी ये क्वाइट करता है बॉडी को, क्वाइटली और पीसफुली अलाउ करता है रिस्टोरेशन प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी को। Cell bodies of parasympathetic ganglionic neurons are found in the nuclei in the brain stem. अब ये कौन से थे, हमने इनके बारे में पहले बात की थी लास्ट क्लास में। मुझे कोई बताएगा कि हमने पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो पढ़े थे लास्ट क्लास में हमारी हेड एंड नेक रीजन के साथ, कौन कौन से थे? यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, प्लीज उसको कोई बता सकता है कि कौन सा गैंग्लिया? सिलियरी ऑप्टिक सिलियरी गैंग्लियन का फंक्शन कहाँ होता है? आई में। गुड, आई में कहाँ? सिलियरी मसल्स के साथ एसोसिएटेड। टेरिगोपैलेटाइन का? लैक्रिमल ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड और उसके अलावा जो है वो फेशियल रीजन में वो डिफरेंट ब्रांचेस भी देता है। देन सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये तो नाम से पता चल रहा है। हाँ जी बोलें। मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। एंड ऑप्टिक गैंग्लियन? ऑप्टिक गैंग्लियन इज एसोसिएटेड विद पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। हाँ जी, पैरोटिड के साथ। अब ये है कि जो वेगस नर्व है यानी 10th क्रेनियल नर्व, उसका एक मेजर चंक जो है वो हमारे इन पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सेस के साथ जुड़ा है। यानी कार्डियक प्लेक्सेस की फॉर्मेशन में वो हेल्प करती है। पल्मोनरी प्लेक्सेस है, वी हैव इसोफेजियल प्लेक्सेस, वी हैव एब्डोमिनल एओर्टिक प्लेक्सेस। और ये आप सारे ऑर्गन्स देखोगे कि इन सब में जो है वो उसका आउटपुट जो है वो आपको नजर आएगा। ये हमारा सारा का सारा क्रेनियल आउटफ्लो के साथ एसोसिएटेड। देन वी हैव सैक्रल आउटफ्लो जो S2, S3, S4 के साथ, जो कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड इज हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, और वो जो है वो हमारे लोअर सेगमेंट्स के यानी हमारा जो सैक्रल आउटफ्लो ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक है उसके साथ एसोसिएटेड है। अगेन ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगेन उनके जो हैं वो इफेक्ट्स हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और पल्मोनरी पे क्या करता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है हमारा, और ब्रोंकियल डायलिटेशन करता है। उसके अलावा जो है वो प्यूपिलरी, यानी ये सारे के सारी चीजें कि ऑर्गन्स के ऊपर इन दोनों सिस्टम्स का इफेक्ट क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। आगे चले तो हमारे पास हैं साइनेप्सिस, ठीक है। अब यहाँ तक हमने जितना किया है, हमने मेजर चंक अपना जो है वो नर्वस सिस्टम का, कि जिसको हम कहते हैं कि हमें उसके हर पोर्शन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन हो, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं साइनेप्सिस के बारे में। साइनेप्सिस जो है वो क्या है कि
साइनैप्स ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है यूनियन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स and ensure that transmission is unidirectional, यानी वो वापस नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में जो है ये सारा का सारा चलेगा. अब इस साइनेप्टिक कम्युनिकेशन के लिए जो है वो हमें जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, दीज आर प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल. हमने जो एक्सॉन टर्मिनल में जो है वो एक्सॉन बूटॉन्स होते हैं या इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन होती है, वो हमने आगे देखे थे, ये बर्ड्स की तरह से जो है वो नजर आते हैं. दिस इज प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल. और फिर हमारे पास जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन जिसपे इफेक्ट होना होता है वो होती है, जो न्यूरोनल सेल बॉडी नेक्स्ट होती है. एंड वी हैव अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, यानी प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक के दरमियान में जो क्लेफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अब ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट करती है, यानी साइनैप्स जो है वो एक्सोडेंड्राइटिक हो सकती है, यानी एक सेल का या न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो साइनैप्स करे विद द डेंड्रॉइट ऑफ अनदर, तो उसको हम कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स. देन हो सकता है कि सोमा के साथ या पेरिकैरियन या न्यूरोनल सेल बॉडी के साथ अगर जो है वो साइनैप्स हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एक्सोसोमैटिक साइनैप्स. And then last one is basically exo-axonic synapse, यानी एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन के साथ अगर साइनैप्स करती है तो दैट इज, तो साइनैप्स जो है वो इनमें से किसी भी तरह हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनैप्स इज बेसिकली एक्सोसोमैटिक, जो कि एक्सोडेंड्राइटिक जो होती है दैट इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि डेंड्रॉइट्स जो है वो बेसिकली रिसीविंग एंड होते हैं और वो जो है वो इंफॉर्मेशन सोमा तक लाते हैं, एंड सोमा से जो है वो फिर आगे जो है वो फर्दर एंटीरो ग्रेड जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन होती है सारे के सारे मटेरियल की. मैम ये कॉमन कौन सी, सॉरी एक्सो रिपीट कर बेटे, डेंड्रॉइटिक, क्योंकि डेंड्रॉइट का काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना, तो ठीक है, तो कॉमन जो है वो दैट इज एक्सोडेंड्रॉइटिक. अब साइनैप्स दो तरह से जो है वो हो सकती है, वी हैव इलेक्ट्रॉनिक साइनैप्स, ठीक है, अब और दूसरी हो सकती है केमिकल साइनैप्स. केमिकल हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है. अब इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस यानी क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो आपको प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक की थोड़ी एनलार्ज इमेज है यहाँ की, अगर आपको नजर आए तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो गैप जंक्शंस के जरिए से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं. तो आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली इन गैप जंक्शंस के जरिए से मूव करेंगे, ठीक है, और जो है वो डिपोलराइजेशन वेव जो है वो आगे चली जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक साइनैप्स. केमिकल साइनैप्स की बात करें तो इसमें जो है वो न्यूरोट्रांसमिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी आयंस और इन केस में न्यूरोट्रांसमिटर्स, और उसमें जो है वो गैप जंक्शंस हैं, बट यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा फर्क है. अब फर्क क्या है कि यहाँ पे बेसिकली होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, क्योंकि केमिकल लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल हैं, दी साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जब फ्यूज होते हैं तो अपनी सारी की सारी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशंस जो होती हैं वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल देते हैं. इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब ये सिक्रीशंस आ जाती हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वहां पे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, तो वो सारे के सारे ये जो आए हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो चलती है. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, गैप जंक्शंस का, साइनेप्टिक वेसिकल्स का. इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट हमें नजर नहीं आ रहा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो दोनों गैप जंक्शंस हैं उसने पूरे का पूरा जो है वो कवर किया हुआ है कि वो दोनों सेल्स को आपस में मिला रहा है. उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं. इसके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और वो जो है वो वेसिकल्स के अंदर होती हैं. वो वेसिकल फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद अपनी सिक्रीशन क्लेफ्ट में डालता है, आगे रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको पकड़ते हैं, और उनको पकड़ने के बाद आगे एक डिपोलराइजेशन वेव होती है. तो साइनैप्स इस तरीके से जो है वो चलती है. अब साइनैप्स कैसे हो सकती है, साइनैप्स जो है वो हमने कहा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान हो सकती है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं उसको. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं,
ठीक है। आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो है वो जब आप पढ़ते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। फिर जो है वो न्यूरोग्लैंडुलर साइनैप्स भी हो सकती है, ठीक है, कि न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड हो जाए ग्लैंडुलर सेल्स के साथ और उसकी सिक्रीशंस को जो है वो एनहांस करे। तो ये साइनैप्स के साथ एसोसिएटेड चीजें हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड जो है वो आपके एमसीक्यूज मैंने थोड़े से देखे। साइनैप्स के भी डिफरेंस का देखा था और इनके रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड भी देखा था। रिसेप्टर्स क्या हैं? Basically, it is defined as a structure that can detect a change in its environment. ठीक है, उसको हम कहेंगे कि this is a receptor. General classification अगर हम receptors की करें तो somatic, soma, skin या outer, उसके साथ जो है वो हम देखेंगे skin या outer part के साथ, और visceral या enteroreceptors. Visceral हमें समझ आता है कि ये विसरास के साथ एसोसिएटेड होंगे और एंटीरो इनर साइड पे होंगे, ठीक है। तो सोमैटिक रिसेप्टर्स को हम दो उनकी डिविजन्स करते हैं। वी हैव एक्सटीरोसेप्टर्स जिनका स्टिमुलाई आ रहा है कहाँ से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो वो कहलाते हैं एक्सटीरियो रिसेप्टर्स। तो वो हो सकते हैं कुटेनियस, जो हमारी स्किन के अंदर, ऑब्वियसली हमारी स्किन सबसे बाहर आउटर पार्ट हमारा स्किन है, तो जनरल या कुटेनियस रिसेप्टर्स कहते हैं उनको। और उसके अलावा जो है वो हमारे स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? हमारे सेंस ऑफ स्मेल के साथ हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं, हमारे अकाउस्टिक हो सकते हैं, हमारे टेस्ट सेंसेशंस के साथ जो है वो एसोसिएटेड रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो दूसरी चीज जो है, जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स के अलावा सोमैटिक के साथ हमारी पोजीशन, ठीक है, हमारे लोकोमोटर सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स जिनको हम कहते हैं, और इनका स्टिमुलाई अराइज होता है डीपर टिश्यूज से, लोकोमोटर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड। तो हम सोमैटिक रिसेप्टर्स को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक है स्किन के साथ एसोसिएटेड और एक है हमारे स्पेशल सेंसरी, और फिर जो है वो हमारे पास है प्रोप्रियोसेप्टर, यानी जो इक्विलिब्रियम लोकोमोटर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अब जो कुटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? हमारी सेंसेशंस क्या क्या हैं? हमारी सेंसेशंस हैं पेन, टच, टेम्परेचर, जिसमें हमारे पास हीट है, कोल्ड है, और प्रेशर, यानी यही हमारी सेंसेशंस है। इसमें जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली वो डील करते हैं हमारे टच को और प्रेशर को, और जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी टेम्परेचर को, जिसमें हीट एंड कोल्ड दोनों आ जाते हैं। देन वी हैव नोसिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स आर फॉर पेन, ठीक है, और स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे मैंने बताया ऑल्फैक्टरी, विजुअल, अकाउस्टिक और टेस्ट सेंसेशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं वो मसल, टेंडन, जॉइंट, फेशिया और मूवमेंट, पोजीशन, प्रेशर, यानी इन सब चीजों को डील करते हुए जो है वो हमारे पास होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। फिर है हमारे पास विजरल या इंटीरोसेप्टर्स, जो कि कीमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जो केमिकल्स के साथ एसोसिएटेड, बैरो प्रेशर के साथ एसोसिएटेड, एंड ऑस्मो रिसेप्टर्स हो सकते हैं। अब ये हमारे स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं मोस्टली इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें जो है वो क्या बात पूछी जाती है? इसमें पूछा जाता है कैप्सुलेटेड एंड अनकैप्सुलेटेड, यानी अगर मैं एनकैप्सुलेटेड का वर्ड यूज नहीं कर रही, दैट इज ENCAP, तो वो ENCAP मींस कैप्सुलेटेड, ठीक है, और अन जो है वो यू के साथ जो अन आता है कि यानी कैप्सूल नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है स्किन रिसेप्टर्स की, वो उस तरह से की जाती है। तो इसमें जो कैप्सूल के बगैर हैं, दीज आर बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास ये मर्कल डिस्क जो नजर आ रही है आपको, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो लिटिल बिट मिलता जुलता है। तो ये दो चीजें अगर आपको याद रह जाए तो ये हैं कैप्सूल के बगैर, यानी अनकैप्सुलेटेड हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं। तो फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, दे आर फॉर पेन, दे आर फॉर टेम्परेचर, ठीक है, और मर्कल डिस्क जो होती है दैट इज फॉर टच, ठीक। अब बाकी आपको जो है उसके अलावा जो है वो रूट हेयर प्लेक्सस जो है दैट इज आल्सो अनकैप्सुलेटेड, यानी जिनका कैप्सूल या एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती।
तो रूट हेयर प्लेक्सस जो कि आपके हेयर बल्ब के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये ऑलमोस्ट इनकी शेप्स अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं कि इनकी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और पीछे जो है वो ये जिन सेंसेशंस को डील करते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारी सेंसेशंस हैं पेन की, टेम्परेचर की और टच की, ये जो है ये बेसिकली अनकैप्सुलेटेड के साथ हैं। अब कैप्सूल के साथ जो स्पेसिफिक शेप बना के जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, दीज आर मीजनस कार्पसूल्स कहते हैं टच के लिए, देन P फॉर प्रेशर, P फॉर पसीनियन कैप्सूल। तो ये हैं हमारे पास जो कि डर्मस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव रुफिनीज एंडिंग्स जो कि अगेन फॉर प्रेशर होती हैं। तो ये वाले सारे के सारे और क्राउस एंड बल्ब्स हैं, ये भी जो है वो एक स्पेसिफिक शेप के साथ हैं। तो इनको चार को हम कहते हैं दीज आर कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स और फ्री नर्व एंडिंग, मर्कल डिस्क और हेयर प्लेक्सस, दीज आर अनकैप्सुलेटेड जो है वो रिसेप्टर्स। बस ये हमारा रिसेप्टर्स के साथ जो है वो खत्म हुआ। लास्ट हमारा जो है वो यही टॉपिक था। होपफुली मुझे था कि जो है वो जनरल एनाटॉमी के केडर में जितनी भी चीजें आती हैं मैं उनको कवर करूं। तो आई थिंक यही है जो आपके जनरल एनाटॉमी के साथ एसोसिएटेड है। बाकी इसमें क्रेनियल नर्व्स की ऑब्वियसली आपको डिटेल क्लास होगी। न्यूरो एनाटॉमी जो है वो एक अलग सेगमेंट होता है, तो ये जीए के साथ एसोसिएटेड था। कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो इनको हम डिस्कस करते हैं। कौन पढ़ेगा? सिंपल है, एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट नहीं आते नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड। कौन बताएगा? Schwann cell are categorized as effectors, receptors, neuron, neuroglia of central nervous system or neuroglia of the peripheral nervous system. क्या कहेंगे हम? Neuroglia peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लिया, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो कौन से थे? Oligodendrocyte. वो तो माइलिनेशन कर रहे थे ना, तो न्यूरोग्लियल तो वो तो सारे ही सेल्स नहीं होंगे। एस्ट्रोसाइट्स। वैसे मैंने जनरली पूछा है। अब है व्हाट टाइप ऑफ ग्लायल सेल प्रोवाइड माइलिन फॉर द एक्सॉन्स इन अ ट्रैक्ट? Schwann सेल, क्योंकि ट्रैक्ट क्या है? पेरिफेरल नर्व फाइबर। हाँ, तो Schwann सेल होगा। ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। बेटा ट्रैक्ट क्या है? एस्ट्रोसाइट। नहीं, साइट में वाइट मैटर। हमने कहा था ग्रे मैटर। जी, सैटेलाइट सेल्स। स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल कॉर्ड है बेटे। Schwann cell. एस्ट्रोसाइट जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट, बिकॉज ट्रैक्ट जो है वो आपका सिर्फ प्रेजेंट होता है पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ट्रैक्ट जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर नहीं होते, वो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। व्हाइट मैटर, स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ ऑल द ट्रैक्ट्स जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ट्रैक्ट्स में जो माइलिनेशन करेगा वो ऑब्वियसली ओलिगोडेंड्रोसाइट होना चाहिए। Schwann सेल इज फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। हो गया? yes. आगे चले। अच्छा जी, अब इसमें चले डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास आज टाइम है। एस्ट्रोसाइट जो है वो उसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएगा। और अगेन अब मैं दोबारा रिपीट करें, Schwann सेल क्या करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व और स्पाइनल नर्व। आई थिंक अब याद रहेगा। और सैटेलाइट सेल क्या थे? सपोर्टिंग सेल्स। सैटेलाइट सेल्स क्या थे? सपोर्टिंग सेल्स।
बेटे सैटेलाइट सेल्स के बारे में कौन बता रहा है? सैटेलाइट सेल्स बेटे। मैम सपोर्टिंग सेल्स। बेटे सपोर्टिंग सेल्स हैं, लेकिन मैंने मैम कहा एनवेलप करते हैं, इन्वेलप करते हैं इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जी, गैंग्लिया में जो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको एनवेलप करते हैं। और वो गैंग्लिया में जो है वो हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास जो है वो क्रेनियोस्पाइनल गैंग्लिया, ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और उसके अलावा जो है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो उन गैंग्लिया में जो न्यूरोनल सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं उनको एनवेलप करने का फंक्शन जो है वो है सैटेलाइट सेल्स का। माइक्रोग्लियल सेल्स क्या कर रहे हैं? फेगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3। पढ़ें जी, फिर डिस्कस करते हैं। कौन पढ़ेगा? रिगार्डिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Regarding peripheral nervous system, all statements are correct except there are 12 pairs of the cranial nerve, there are 5 pairs of sacral nerve. The posterior root of spinal nerve contain many efferent motor nerve fibers. The posterior root ganglion contain the cell bodies of sensory nerve fibers entering the spinal cord. Spinal nerve is formed by the union of an anterior and posterior root in an intervertebral foramina. हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? सी। क्यों? रीजन बताओ बेटे। मैम ये इफरेंट है, यहाँ एफरेंट होना चाहिए था। एफरेंट होना चाहिए था। गुड। नेक्स्ट, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रिसेप्टर्स इज mechanoreceptors are excited by touch and pressure. Thermoreceptors are excited by warm and cold. Proprioceptors, जी मैम D is false. D dog. अच्छा, D इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके स्टेटमेंट को जो है वो आप करेक्ट करें। Ma'am, visceral receptors are located in the viscera and blood vessels. ठीक है, वहां भी हो सकते हैं, वहां भी। Receptors are controlled by neuroendocrine system. ठीक है, थैंक यू बेटे। आगे चले। Diencephalon is divided into the following part except Diencephalon के सबसे पहले तो मुझे पार्ट्स बताएंगे आप। B midbrain. ठीक है, अब मुझे Diencephalon के पार्ट्स, बाकी सारे के सारे हमने जो पढ़े थे, Thalamus, hypothalamus, ठीक है, hypothalamus। अच्छा ठीक है। अब इसमें से एपिथैलेमस जो था उसका स्पेशल फीचर क्या था? उसका फंक्शन क्या था और उसका स्पेशल फीचर क्या था? उसमें पिनियल ग्लैंड आ रहा था ना? बिल्कुल, एपिथैलेमस जो है वो उसमें जो स्पेशल बात है वो ये है कि उसका पार्ट है पाइनियल ग्लैंड या पिनियल ग्लैंड, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो। तो पाइनियल ग्लैंड बेसिकली हमारा जो है वो किस चीज को कंट्रोल करता है? मेलेटोनिन को। हाँ, मेलेटोनिन को, जो हमारे सर्कैडियन रिदम को करता है। रिगार्डिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। चलें जी, अब इसकी तरफ गौर करें। हाँ जी, बताएं। मैम ई। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है बेटे? मैम ये पैरासिम्पैथेटिक है इंस्टेड ऑफ सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक है, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं ना। अब ये थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी था। पहले स्टेटमेंट कोई पढ़ेगा प्लीज मेरे लिए? मैं पानी पी लूं।
Which of the following accurately describe the direction of an impulse moving through a neuron that carries information to the central nervous system from the peripheral nervous system? An afferent neuron impulse moving distally, an efferent neuron impulse moving proximally, an efferent neuron impulse moving distally, an afferent neuron impulse moving proximally, a bipolar neuron impulse moving proximally. Ma'am, D. Distally. Ma'am, B, an efferent neuron impulse moving proximally. आप क्या कह रहे हैं? An efferent neuron impulse moving. इसमें जो है वो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यानी हम आ रहे हैं प्रॉक्सिमली, ठीक है, यानी हमने डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आना है। पहली चीज ये क्या? मैम डी। तो मैम an afferent neuron impulse moving proximally. Good. D is the right answer. ठीक है। अगला एमसीक्यू कोई पढ़ेगा? ये तो बहुत आसान है, कोई रीड करेगा? A veteran is admitted to the hospital after sustaining a traumatic brain injury. A magnetic reasoning imaging shows significant damage to the veteran's cerebellum, and the damage would result in difficulty with which of the following function? A, memory loss. B, regulation of emotion, sensation of pain, coordination of movement, regulation of coordination of movement. कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ये तो बहुत आसान था, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत बड़ी होती है और आप समझते हैं कि इसमें बड़ी कोई डिफिकल्ट बात पूछी जा रही है, लेकिन वो बहुत सिंपल होती है। तो ये मैं कोशिश होती है मेरी कि हर तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो, जैसे अब इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर जो है वो आपको सोचना पड़ता है, तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के पहले अपना माइंड मैप बना लो, ठीक है, कि उसको पहले जो है वो देखो, रियलाइज करो कि वो पूछ क्या रहे हैं, फिर उसके बाद अब माइंड में अपना आंसर बनाने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो आनी चाहिए थी कि जो है वो पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आ रहा है, तो वो अगर इतना सा भी माइंड मैप बना होगा तो उसमें से 3 चीजें तो आपके उसमें से निकल जाएंगी, फिर आपके पास 2 होंगे जो कि आपको करेक्ट आंसर में हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे इतनी लंबी स्टेटमेंट है, क्लिनिकल सिनेरियो है, आप समझ रहे हैं कि मुश्किल हो सकता है, बट उसमें बहुत बेसिक बात के सिर्फ फंक्शन पूछा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 9। जी बेटे, कोई नहीं बोल रहा, कहाँ चले गए? डी। हाँ, अच्छा, आप स्टेटमेंट पढ़े पहले। B. Ma'am, C. B is correct. B. C is correct. Ma'am, C. इनको सबको जस्टिफाई करते हुए चलो, आपस में मतलब डिस्कस करो और जस्टिफाई करते हैं इसको। Sympathetic nervous system activation increases cardiac output, not decreases it. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, डायलेट करता है? कंस्ट्रिक्ट करेगा। Constrict. अच्छा, नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन इंक्रीजेस हार्ट रेट। Ma'am, it decreases heart rate. Ma'am, it decreases the heart rate. Parasympathetic nervous system activation constrict arteries, ठीक है। मैम dilates the artery.
अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अंडर स्ट्रेस रेजेस ब्लड प्रेशर, Not decreases. ये भी गलत है। Decreases the blood pressure. ठीक है, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? B. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कौन करेगा? ये तो बहुत आसान है, वन लाइनर तो नहीं है लेकिन आसान है। कौन बोलेगा? बोलो बच्चे। Ma'am, impulsive. Side पे open है। Ma'am, impulses pass from one neuron to another at a microscopic gap called a synapse, where they trigger release of chemical signal molecules called neurotransmitters. न्यूरोट्रांसमीटर्स, आसान सा है बहुत। ठीक है जी, आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं एंड होती है। कल हम दोबारा मिल रहे हैं और कल हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, Thank you, ma'am. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसमें हम इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा क्योंकि वो आई डोंट नो वो उसमें जो है वो स्पेसिफाई नहीं हुआ तो उसमें हम थोड़ा सा उसका एम्ब्रियोलॉजिकल पोर्शन देखेंगे, फिर उसके बाद उसका जो है वो ग्रॉस एनाटमी का पोर्शन देखेंगे, देन उसको हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें जो है वो हिस्टोलॉजिकल पोर्शन जो है वो उसका वो थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो होपफुली क्लिनिकल जो है वो कल मेरी कोशिश होगी जो उनके साथ एसोसिएटेड है उनको ज्यादा डिस्कस करूँ। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया। और कोई क्वेश्चंस हों तो आप मैं भी देखती हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.